Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, who is the most magnificent and the most merciful. Welcome to our webinar, Unlock Your Potential, Exploring the Benefits of Aspire Leaders Program. I am Domal from ScholarBit Society and I'm thrilled to be your host for today's inspiring session. This webinar is being presented by ScholarBit Society in collaboration with the Aspire Institute of Pakistan. Our distinguished guest speaker for today's is Fatima Bibi, an inspiring change maker and a leader. She is an Aspire Alumni 2024, a Social Impact Seed Fund Awardee 2024, and a Community Action Award winner 2025. She is also the founder of Dahkan, Pakistan, and currently serves as the president of the Arabian Peace Society. Additionally, she is an Amplify Feminism Fund grantee. Fatima has been actively leading impactful initiatives, empowering communities, and proving that with vision and dedication, young leaders can bring about real change. Today, she will be sharing her journey, experiences, and insights into how the Aspire Leaders program can transform lives and open doors to new opportunities. Before we embark on this journey of knowledge, just a quick note: please keep your cameras off and microphones muted to avoid disruptions. If you have any question during the session, feel free to raise your hand or type them in the chat. We will address them towards the end. Without any further delay, let's begin our session. Over to you, Miss Fatima Bibi. Thank you so much for this warm introduction. Am I audible? Yes, you are. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are. Okay, perfect. अभी हम slides की तरफ जाएंगे. Okay, thank you. So this is Fatima, and you all know that I am first ever Pakistani recipient of Community Action Award. And my majority of community development work is related to agriculture and its intersection with climate change and gender and climate justice. So today we will talk about Aspire Institute, its benefits, especially for the first generation students and those students who are from limited and low income families. सबसे पहले हम एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास जिनके माँ बाप के पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री नहीं होती और लिमिटेड इनकम फैमिलीज हमें सबको पता है कि जो पॉवर्टी लाइन से बिलो होते हैं या मिडिल इनकम फैमिलीज से ताल्लुक ताल्लुक उनका होता है सो एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स और लिमिटेड इनकम स्टूडेंट्स हैं अगर हम एस्पायर इंस्टीट्यूट के मिशन की बात करें तो इनका मिशन ये है कि हमने जो कम्युनिटीज़ हैं ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे जो वल्नरेबल हैं जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है उनके पोटेंशियल को राइज करना उनके पोटेंशियल को जानना और उसको पॉलिश करना हमें एक हमारी एस्पायर की मीटअप था 2024 में और उन्होंने हमें जब मीना जी बात करी थी और वो सब तो उनके पीछे अपना मिशन बताते हुए उनका ये कहना था कि हमारा मानना ये है कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है स्पेशली डेवलपिंग स्टेट्स में जो छोटे तरक्की याफ्ता स्टेट्स कंट्रीज नहीं है और उनके पोटेंशियल को पहचानने के लिए बहुत सारी बैरियर्स आते हैं तो एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम एस्पायर इंस्टीट्यूट इसी गैप को फिल इन कर रहा है टैलेंट और अपॉर्चुनिटीज का जो बहुत बड़ा गैप है इस आज की कंटेम्पररी दुनिया में अगर हम इसकी बात करें कि एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम है क्या और इसकी इमर्जेंस कैसे हुई इसके इनिशियल स्टेजेस में वो क्या था तो 2017 में इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी बुनियाद रखी गई लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट में उसके बाद 2018 में उसको सेंट्रल एशिया और यूनाइटेड स्टेट्स तक एक्सपैंड किया गया और उसके बाद 2020 में हम देखते हैं कि ग्लोबली जो हार्वर्ड का प्रोग्राम है जिसको पहले हार्वर्ड क्रॉस रोड्स इमर्जिंग लीडर्स प्रोग्राम कहते थे वो उसको एक्सपैंड किया गया 2021 में इनके जो
एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम है, पहले इन पर्सन होता था, जिससे हम एक मिले भी थे एक इंडिविजुअल से जो दुबई में उनका अटेंड करके आया था। उसके बाद इसको वर्चुअल रखा गया 2021 में। 6 स्टेजेस 6 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल ये प्रोग्राम था। और 2022 के बाद हम देखते हैं कि ये 200 प्लस कंट्रीज में वर्चुअली इसने स्टूडेंट्स को रीच आउट किया और एक एस्टैब्लिश्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो अभी उसके हेडक्वार्टर्स कैम्ब्रिज में है, मैसाचुसेट्स में। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने इंडिया में, पाकिस्तान में, ब्राजील में अपनी फाउंड्रीज कायम की। फाउंड्री जहाँ पे एक लाइक हेडक्वार्टर तो उनका अमेरिका में है, उसके सब ऑफिसेस सब जो फाउंड्रीज हैं वो कायम की गई, जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह से पूरी जो फिलांथ्रोपिस्ट हैं जो जिनका काम है कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, वहां पे उन्होंने फंडिंग्स उनसे ली और इस तरह से फाउंड्रीज और एस्पायर इंस्टीट्यूट को जो नेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमने एस्पायर इंस्टीट्यूट के ओरिजिन की बात कर ली। अच्छा, एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फुली फंडेड है, कोई कॉस्ट नहीं है और 9 वीक्स तक ये चलता है और 1 हफ्ते में 3 आवर्स इसकी कमिटमेंट है और मुझे लगता है इससे भी कम है अगर आप उसको तवज्जो से और उसको करो तो ये इसकी टाइम कमिटमेंट है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, माय फेवरेट पार्ट व्हेन आई टॉक अबाउट एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम, एस्पायर इंस्टीट्यूट, तो वो ये है कि सबसे पहले तो ग्लोबल कम्युनिटी। हम जिस माशरे में रह रहे होते हैं, हमारा पाला बहुत ही एक महदूद जो लोग हैं उनसे पड़ता है। और जब मैं महदूद की बात कर रही हूँ तो इसका स्पेसिफिकली मतलब ये है कि हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पर्सपेक्टिव्स और उनके हराइजन्स इतने वास्ट नहीं होते, मतलब वो बहुत कम सोच में सोच रहे होते हैं या उनका ताल्लुक कम रिलीजन से होता है या कास्ट क्रीड, मतलब उनके पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो बिल्कुल कम होते हैं और डाइवर्सिटी कम होती है बेसिकली। लेकिन जब हम एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं जो 200 से ज्यादा ममालिक जो है उसका पार्ट है, तो आपका सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती है, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है, आप चीजों को मुख्तलिफ एंगल्स से, मुख्तलिफ जावियों से सोचते हो, आप एक दूसरे से सीखते हो। जैसे मैंने बहुत सीखा, मैं जब एग्रीकल्चर में न्यू आई थी तो देयर माय फ्रेंड्स फ्रॉम कैमरून, फ्रॉम different parts of the world like Egypt, बांग्लादेश। अभी हमने क्रॉस कल्चर कोलैबोरेशन जो प्रोजेक्ट आया था उसमें हम बांग्लादेश से, कैमरून से और पाकिस्तान से, हम तीनों ममालिक से मिलकर स्टूडेंट्स उसको सबमिट किया। तो जो ग्लोबल कम्युनिटी वाला जो पार्ट है इज माय मोस्ट फेवरेट और मुझे लगता है इज मोस्ट इम्पैक्टफुल व्हेन वी टॉक अबाउट एस्पायर दिस प्रोग्राम। सेकेंडली, मास्टर क्लासेस। हम स्पेशली वो बच्चे जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जैसे मैं खुद हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आउटगोइंग बैच का हिस्सा हूँ, तो हम जिन प्रोफेसर से पढ़े होते हैं उनकी एक्सेस उस तरह से नहीं होती। मतलब हम लम्स और नस्ट के बच्चे तो हैं नहीं जो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं जिनके प्रोफेसर्स, तो जिस तरह से प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं उनकी क्वालिटी और वो सब इतना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं होता। तो ALP एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम हमें मौका फराहम करता है कि हम स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकें। थर्डली, जो लीडरशिप कोर्स है जिसमें हमें मास्टर क्लासेस और वीडियोस वगैरह दी जाती हैं वो हार्वर्ड फैकल्टी ने डिजाइन किया हुआ है। दिस इज द मोस्ट फन पार्ट और one of the most impactful features of Aspire Leaders program. Personal and professional development. हम जिस तालीमी सिस्टम का हिस्सा हैं वहाँ पे बहुत ही महदूद अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ही महदूद थिंकिंग प्रोसेस है, हम बहुत ही किताबी कीड़े बन के वी हैव टू गेट ग्रेड्स, you know, we have to present assignments and all this stuff without any critical thinking, without any diversity of perspectives. और हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि बाहर की दुनिया कैसी है, जॉब मार्केट हाउ इट लुक्स लाइक, वहां पे जाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं,
हमें अपनी CV किस तरह से बनानी है, हमें अपनी अचीवमेंट्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो ALP ये सब चीजें कवर कर देता है। आपको रेज्यूमे से लेके हाउ टू टेक इंटरव्यूज सब कुछ बताता है। और मैं खुद पर्सनली बताऊं तो व्हाइल इंटरैक्टिंग विद माय पीयर्स अक्रॉस द ग्लोब, it literally polished and refined my communication skills. And so the most important part, financial awards. ALP में आने के बाद alumni को ये मौका फराहम करता है कि आप IELTS और जो मुख्तलिफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप वाकई कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़े लीडर हो और आप वाकई चाहते हो कि बाहर की स्टडीज से आप जाके पढ़ो और उसमें जो आपने नॉलेज और टूल्स यू गेन आप उसको इम्प्लीमेंट करो बैक होम, तो मुझे लगता है कि आइल्स और वो सब आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज कम है व्हेन इट कम्स टू दिस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये बहुत एक नोबेल अपॉर्चुनिटी होती है फॉर एलुमनाई कि वो उसको दें। उसके अलावा SISF जिसमें आपको $500 तक ग्रांट मिलती है, that's the most exceptional opportunity to found, अपना कायम करना, to establish शुरू करना अपना venture, to initiate a venture. I think SISF is the most exceptional and incredible opportunity जिसको हमें किसी को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें बात करनी चाहिए अपने प्रोफेसर से लेके हर चीज़, हर ऐसे बंदे से जो आपका मेंटर रहा है, आपका सीनियर है, कि मैं किस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको हाउ कैन वी मेक मोस्ट ऑफ इट। तो हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आपको ये नाज़िर मौका फराहम करता है कि आप स्टार्ट किस तरह से अपना जर्नी करो। इसमें मैं एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि पहला ये कि रिकमेंडेशन लेटर्स की जब बात करते हैं तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर क्या। और अभी मुझे कुछ लोग काफ़ी जब से मैं इसमें आई हूँ तो तकरीबन 15 से 20 लोगों ने मुझे रीच आउट किया है फॉर रिकमेंडेशन कि आप अपना ईमेल वो कर दें। तो मैं बताना चाहूँगी कि वो आपसे ईमेल मांगते हैं रेफरेंस के तौर पे, वो एक फॉर्म भेजते हैं जो आपको रिकमेंड कर रहा होता है। तो उसमें यू आर सपोज टू अपलोड योर रिकमेंडेशन लेटर। तो वो आपको आई हाईली रिकमेंड कि कोई ऐसी सोसाइटी है जिसके साथ आप काम कर रहे हो या आपने इंटर्नशिप किया है या आपके प्रोफेसर हैं, आपको उनसे पहले बात करके रखना चाहिए ताकि उनसे डिस्कस करो, अपने आइडियाज डिफाइन करो और इस तरह से रिकमेंडेशन लेटर। सेकेंड चीज, नीश की जब हम बात करते हैं, majority of students at early stages are very confused कि हमें करना क्या है। Like they are very interested in painting, in arts, and similarly they are interested in water management, sanitation, climate change, and stuff like that. Okay, so the point is कि जब तक आप अपनी नीश को स्पेसिफाई नहीं करोगे, आप कहीं भी वो नहीं like you can't achieve anything. तो ये चीज बहुत जरूरी है जब इसकी बात करते हैं। उसके बाद कम्युनिटी एक्शन अवार्ड आता है कि आपने जो इनिशिएट किया है अपना वेंचर उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, उसमें आप जब ऐसा ये सब जीत जाते हो आप, तो आपको एक्सेस मिलता है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल फाउंड्री का हमें इस बार मिला था, जिसमें टूल्स हैं कि आपने किस तरह से एक अपने प्रपोजल को एफिशिएंट बनाना है। और इससे ऑफ कोर्स मतलब एक बड़ी ग्रांट होती है, $5,000 तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। उसके बाद आपकी राहें हमवार हो जाती हैं फॉर अदर ग्रांट्स जो और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की तरफ से। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की मैंने पहले बहुत बात कर ली थी ग्लोबल कम्युनिटी वाले ही पॉइंट में कि किस तरह से नेटवर्किंग मेरे लिए, अगर मेरे से कोई पूछना नेटवर्किंग क्या है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग एंड इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल, बट ये है नेटवर्किंग मेरे लिए कि आप किसी से बात करो, यू हैव फन विद देम एंड आल्सो यू लर्न फ्रॉम देम। आप उनसे सीखते हो, आप चीजों पे यू पॉन्डर ओवर देम, आप उस पर गौर फिक्र करते हो और इस तरह से आप मुख्तलिफ यू कम अप विद डिफरेंट आइडियाज एंड रिफाइन देम एंड स्टफ लाइक दैट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटरशिप, तो मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं जब हम एस्पायर में आते हैं। लाइक मुख्तलिफ जो जैसे अभी हम काव्य कृष्णा के साथ था हमारा सेशन, तो इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं अपनी अपनी फील्ड्स के, उनके साथ हमारे सेशंस होते हैं और हम उनसे डायरेक्ट लाइव क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं।
तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज सम्स इट ऑल जब भी किसी को अपना करियर का स्टार्ट करना होता है. इट्स लाइक हाईली एनकरेज एंड हाईली रेकमेंड to apply for Aspire Leaders program and complete it. अगर आप complete नहीं होता तो you can also reach out to their alumni. LinkedIn पे इतने ज़्यादा हैं. You can also reach out to me अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है ALP को लेके कोर्स के अंदर, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए. जी अगली स्लाइड. थैंक यू. ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने पहले भी बात की थी. फर्स्ट जनरल लिमिटेड इनकम बैकग्राउंड, उसकी एज देख लें. आप मास्टर्स में इनरोल ना हुए हूँ, रिसेंट ग्रेजुएट हूँ, और या नहीं तो आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट लाइक आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री शुरू की हो या अभी अभी खत्म की हो, लाइक मास्टर्स में इनरोल ना हूँ. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. और 18 to 29 ईयर्स ओल्ड आपकी उम्र हो. हाँ, इट हार्डली टेक्स 10 to 15 minutes टू फिल इन द एप्लीकेशन. उसके बाद ओरिएंटेशन मॉड्यूल आता है जिसमें यू गेट टू नो मोर अबाउट डिटेल्स में भी आपको बता Aspire Leaders प्रोग्राम. और उसके बाद इट स्टार्ट्स और एंड्स आफ्टर 2 मॉड्यूल्स. जी नेक्स्ट स्लाइड. Okay, when we talk about module 1, तो पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट की मैंने पहले भी बात की थी कि इसमें हमें रेज्यूमे से लेके इंटरव्यूज वगैरह कैसे देना है, कवर लेटर किस तरह से करना है, नेटवर्किंग किस तरह से कैन बी अ की टू सक्सेस, उसके बारे में सिखाया जाता है. वैसे बट डिस्कॉर्ड में हमारे रूम्स वगैरह होते हैं एंड वी टॉक अ लॉट विद आवर पीयर्स अक्रॉस ग्लोब, और इस तरह से डिस्कशंस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. दैट्स द मोस्ट फन पार्ट ऑफ ALP. उसके बाद हाँ, लीडरशिप असेसमेंट, स्ट्रेंथ्स बेस्ड लीडरशिप असेसमेंट होती है. इसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं वो आपने करनी होती हैं. एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, इसमें वीडियोस वगैरह की फॉर्म में. जब मैं थी अभी शायद उन्होंने कुछ अपना सिलेबस चेंज किया हो, लेकिन मुख्तलिफ वर्कशॉप्स होती थी इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस. और उसके बाद हमने अपना रेज्यूमे वो सब बना के उसको प्रेजेंट करना होता था. एंड देन वी हैव टू गिव देम अ रिपोर्ट. सो दिस इज ऑल वी लर्नड के किस तरह से अपना आपको प्रेजेंट करना है और टू इनिशिएट आवर करियर इन मॉड्यूल 1. जी नेक्स्ट स्लाइड. And second, Aspire Horizons course. This is the most learning and a module full of joy. जिसमें करीम लखानी और तरुण खन्ना की बहुत मजे की डिस्कशंस हैं ऑन पब्लिक हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह से. और जो पहली है जो करीम लखानी वाली है वो लीडरशिप पे है, जिसमें द टॉक अबाउट के लीडरशिप लीडर्स क्या होते हैं, आइदर दे आर बॉर्न या वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन आती है. ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप से लेके सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस की जाती हैं. अच्छा, मैं थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करूंगी व्हाइल टॉकिंग अबाउट ALP मॉड्यूल 2. सो जब मैंने ये लीडरशिप वाली वीडियो देखी थी ना, तो इट रियली हिट माय हार्ट एंड माय हेड कि भाई यस, हम यहाँ पे वी आर हियर फॉर समथिंग बिगर, नॉट कि बस खाली और पीले और सो गए. आपको वाकई अंदर से झंझोड़ के रख देता है कि द प्रॉब्लम्स इन योर सोसाइटी, उसको हल करना इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप कुछ भी करो, whatever you can do at your individual level. So this is your responsibility. Leading with contextual intelligence, leading with emerging technologies and actions for social impact. वैसे मैंने बात की कि social impact और leadership पे बहुत extensive videos हैं इनकी, with the intersection of artificial intelligence, और इससे आप बहुत कुछ सीखोगे. जी नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, एक और चीज़ कि इसी के अंदर आपको प्रपोजल बनाना भी सिखाया जाता है. प्रपोजल इज द मोस्ट कुछ लोगों को मुश्किल भी लगता है व्हेन वी टॉक अबाउट फंडिंग और अवार्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो प्रपोजल की जो जितनी भी बेसिक्स हैं वो भी आपको इसके अंदर सिखाई जाती हैं. एंड देन दे आस्क यू टू सबमिट इट, और उसी की बेसिस पे फिर आप अपना, डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन मेजॉरिटी उसकी बेसिस पे उसे मिलता जुलता आप आगे SASF में अप्लाई करती हो. एंड देन
for CAA Community Action Award. Master classes is the most fun part, जिसमें आप लाइव क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो फ्रॉम लीडिंग प्रोफेसर्स. ये हम पहले बात कर चुके हैं. हर तरह के थीम्स होते हैं, वीडियोस वगैरह, और आप अपने जो एक उसमें नेसेसरी होती है, मैंडेटरी होती है. ऑफ कोर्स आपको पहले से कोई बहुत लाइक फाइक होने की ज़रूरत नहीं होती है. यू लर्न बाय टाइम थ्रू दिस मॉड्यूल्स, जिसमें मुख्तलिफ एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में यू टॉक अबाउट एंड यू लिसन टू दैम एंड यू आस्क क्वेश्चंस. एंड सो या, मास्टर क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम. अगली स्लाइड कीजिएगा. Yeah, you can say these big names, Massachusetts Institute of Technology, जिसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोफेसर जो हैं वो बात करते हैं. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, येल यूनिवर्सिटी, कैनेडी स्कूल, मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड लॉ स्कूल एंड दी टफ्ट्स यूनिवर्सिटी. ये सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके प्रोफेसर्स मास्टर क्लास में अपीयर होते हैं और आप उनसे डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन कर सकते हो. जी नेक्स्ट स्लाइड. एक्सटेंडेड लीडरशिप प्रोग्राम ELP. जब आप एक अलुमनाई बन जाते हो, आप एक अलुमनाई या अलुमनस बन जाते हो ALP के, तो उसके बाद ऑफ कोर्स लाइफ टाइम आपको एक्सेस होती है. यू गेट टू रिसीव ईमेल्स फॉर मेंटरशिप, वर्कशॉप्स, नेटवर्किंग इवेंट्स एंड वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स वगैरह. सो और ऑफ कोर्स आपका रिसोर्सेज और एक जो ग्लोबल कम्युनिटी तक एक्सेस है वो आपको मिलती है. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सटेंडेड लीडरशिप प्रोग्राम. मॉड्यूल 1 alumni opportunities and module 2, these are the like same things. इसकी हम बात कर चुके हैं कि हमें फाइनेंशियल अवार्ड्स और वॉलंटियर प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज और मेंटरशिप सेशंस वगैरह मिलते हैं. जी अगली स्लाइड. Seed funding up to $400, visionary ideas for community transformation. अच्छा, जब मैंने किया था तब $1,000 तक we could apply. Academic awards and community action awards, alumni community तक आपकी access होती है. अच्छा, when we talk about Pakistan, since Aspire Institute की एक foundry पाकिस्तान में भी है, तो कोर्सेरा scholarships मिलती हैं. अभी मैं भी project management पे कोर्स ही कर रही हूँ through कोर्सेरा. उसके अलावा मेंटरशिप सेशंस मिलते हैं, जैसे दिस इज वन ऑफ द सेशंस यू गाइस आर अभी आपने ज्वाइन किया है उसको. तो इस तरह के सेशंस और इंफॉर्मेटिव सेशंस ऑन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप्स, और फिर ये the most important part, talent with leaders, university leaders, community and domain and support leaders. Just when you interact with students across Pakistan, and you establish and you work on your clubs in your universities, or of course when you volunteer for establishment of a club at your university, you learn a lot. जिस तरह से territory leaders हो गए, आपके सॉफ्ट स्किल्स पे वक्त के साथ साथ they get refined. Sessions on scholarship, access to hardship scholarship, Orange Tree Foundation के साथ इनका collaboration है, और networking events तक access जो अभी थोड़ी देर पहले, 1-2 दिन पहले हुआ है session. तो ये वाली opportunities हैं from Aspire Institute पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में इनकी boundary है. जी अगली slide. So I highly recommend कि आप लोग ज़रूर September 17 इसकी लास्ट डेट है for cohort 5, और October 15 to December I guess एक साल में 5 cohorts होते हैं. तो आप प्लीज़ इसमें अप्लाई कीजिएगा. September 17 तक आप अप्लाई कीजिए. October 15 तक you will early October में you will get results, और December में आपका प्रोग्राम हो जाएगा and you will be an alumni. alum of Aspire Institute, और उसके बाद of course you will have access to valuable resources and financial awards and so many opportunities. Thank you.
I think now we should move to Q&A session. Google form is shared in the chat box. Participants are advised to fill the form for e-certificates. If anyone has any kind of question, please raise your hands. Assalamu alaikum, Miss Fatma. Now I am read the question from the chat. So then you answer them. First question is, after getting the seed fund, how can we implement our project plan is in our community then? Okay, perfect. Thank you for question. So जब हम सोशल इम्पैक्ट सीड फंड की बात करते हैं तो ये ऐसे तो ही नहीं मिल जाता, राइट? उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है. जैसे मैंने पहले बोला, यू नो यू हैव टू कलेक्ट योर रिकमेंडेशन लेटर. उसके अलावा जो बेसिक्स हैं एक प्रपोजल की, आपको उस पर काम करना है, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल गेट इट. उसके बाद में टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. तो इम्प्लीमेंटेशन में जो पहली मेजर चीज आती है, जब हम प्रपोजल की बात करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो मुझे लगता है, बल्कि लगता क्या है, ऐसा है, जो सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है आपकी टीम. अगर आपकी टीम इज केपेबल इनफ टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, तो यू विल डू इट. सेकेंडली, आपकी स्किल्स, कि आप कितने काबिल हो उस चीज के बारे में. इफ यू टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शनैलिटी और यू नो इको जस्टिस, तो आप इन टॉपिक्स को लेके कितने क्लियर हो अपने माइंड में. लाइक अगर आप, जब तक आपके पास ऐसी स्किल्स, आपके पास वो डिग्री, आपके पास ऐसी फेलोशिप्स या ऐसे कोर्सेज नहीं होंगे जो आपको इस काबिल बनाते हैं टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट, एट द फर्स्ट प्लेस आपको तो फंडिंग ही नहीं मिलेगी. आपका आइडिया तो यूनिक होना ही चाहिए, लेकिन फंडिंग गेन करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ योर टीम्स. आई थिंक दीज आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट करने में मदद देती हैं, लेकिन जो पिलर्स हैं ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो वो ये चीज़ें हैं कि आपकी टीम, आप जिससे कोलैबोरेट कर रहे हो, आपके जो पार्टनर्स हैं वो, और सेकेंडली आप किस कदर काबिल हो, आपके पास कितनी स्किल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज एंड कोर्सेज एंड इंटर्नशिप्स एंड यू नो होल record ऑफ द एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर्स. वो सब ये पिलर्स हैं. अगर आपकी ये पिलर्स मजबूत हैं तो यू विल एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली. Okay, I next hope question it is from it Adila answers. Shahzadi. How to get awards yeah. after completing the program?
वही बात आ गई कि आपने अवार्ड कैसे जीतना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी ईमेल्स आती हैं, रेगुलरली चेक आउट योर ईमेल्स। उसके अलावा 7 दिन का आपके पास होता है वक्फा, तो यू नो अलुमनाई बनने के फौरन बाद आप अपने रिकमेंडेशन पे, लेटर पे काम कीजिए, अपने आइडियाज पे काम कीजिए, नीश आइडेंटिफाई कीजिए, अपने स्किल्स और अपने शौक और अपने पैशन के मुताबिक उसको अलाइन करके एक नीश आइडेंटिफाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था इन माय 7th सेमेस्टर कि आई हैव टू वर्क लाइक in the late 6th semester that I have to work on in agriculture stuff, and it's been like 1 year. 14th of August mein maine I launched Dehkan Pakistan, or since then we have secured funding of like 8 lakh tab tak within this 1 year while pursuing my full time undergrad degree. तो यही चीजें होती हैं, आप अच्छे प्रोफेसर से बातचीत करें, अपने आइडियाज को रिफाइन करें, अप्लाई फॉर एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट इट। लेकिन मेजर ये चीज है कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें। A question from Umar Farooq. I am recently graduated and I want to go for abroad studies through scholarships. So please guide about this, means any opportunity related to this, and also please tell about IELTS and GRE. Do this replace those IELTS or GRE? Okay, so Umar, very first of all, in the very first place, I am like, I am going to be a recent graduate very soon. Like I'm working on my final year report, final thesis. So like it's not my expertise, my area of expertise के बाहर कैसे जाते हैं और वो सारी चीजें, because I'm still learning, I'm still working on that stuff के passports and verification of documents and English proficiency test वगैरह वगैरह। बट अभी मुझे जितनी आपकी बात की समझ आई है, आप ये कहना चाह रहे हो कि बाहर स्कॉलरशिप्स वगैरह को किस तरह से वो करना है। तो मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनसे जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी ऑफ कोर्स रीच आउट टू दोज पीपल जो खुद गए हैं और जिन्होंने वो किया है। तो सबसे पहले तो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब इंटर्नशिप्स और वो सारी चीज़ों को लेके, इफ यू रियली वांट टू सिक्योर एक अच्छी फुली फंडेड स्कॉलरशिप। सेकेंडली, जो मशहूर स्कॉलरशिप्स हैं जैसे इरास्मस हो गया, फुलब्राइट वगैरह हो गया, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स आइल्स और जीआरई इज कंपल्सरी, तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। एंड थर्डली, आई थिंक अगर आपको क्लियर, बल्कि I was having a conversation with Helen Adamson. She is professor in a university in UK. तो वो हमें बता रही थी कि हम सबसे पहले जब एडमिशंस कमेटी में कोई भी एप्लीकेशन आती है, तो हम ये देखते हैं कि ये बच्चा इज ही और शी केपेबल इनफ टू स्टडी दैट कोर्स, और वो उस कोर्स को वो हमें क्या यूनिक बता रहा है कि मैं इस कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर आप क्लियर हो कि आप ये कोर्स और ये यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आई गेस आप कर लेते हो सिक्योर एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप। स्टिल आई एम वर्किंग लाइक मुझे कैसे करनी है, बट दीज आर माई रिकमेंडेशन जो मैंने विद इन 4 years सीखा है। Next question is from Fiza Aruj. How to make team? Oh, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम अक्सर पूछना भूल जाते हैं, एक टीम को कैसे करें। सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन रिलेट टू इट, और उसके अलावा देन यू contextualize it अपने बैकग्राउंड से। So when I started, when I initiated, when I launched my venture, तो उसमें I literally didn't have no one, zero individual on board जब मैंने वो किया था। But I reached out to my classmate और उसके साथ I had discussion. I knew that कि उसका background agriculture का है और वो सब. And he simply said me, Fatma, just launch it. I am here. I will fund you and stuff like that. He literally said that I will fund you 50,000 rupees for your website and, you know, for initial costs, operational cost. And I was like, okay,
So 14th August 2024 आता है and I just launched it. लेकिन बहुत सारी 7-8 महीनों के आइडियाज को डिफाइन करके, नीश आइडेंटिफाई करके, बिकॉज आई वाज वेरी कंफ्यूज के करना क्या है, सारी चीजों का हिसाब किताब लगा के देन आई डिसाइडेड टू डू दिस. तो मेरे पास तो सिर्फ एक बंदा था, सिर्फ एक क्लासमेट था मेरा, एंड दे वर लाइक माय फ्रेंड्स हु वर इमोशनली सपोर्टिंग मी. बट उसके बाद जब मैंने उसको लॉन्च कर दिया एंड देन आई रीच्ड आउट टू, आई लिटरली डिडंट रीच आउट टू एनीवन, बट आई रीच्ड आउट टू पीपल टू फॉलो माय पेज. और उसके बाद my friends from debating circuit, because I was part of debating society of Government College University Lahore at that time, and you know that in Lahore debating का बहुत culture है debates का. So there are my friends outside of my university and they also wanted to join my venture. और उसके अलावा when it comes to ALP के मेरे दोस्त थे, not दोस्त but ALP के peers थे, like they were my fellows, और उनसे मैं एक बार मिली थी, and then they reached out to me that Fatma, we want you to be part of your venture, of your organization. I think it's super amazing mission जिस पे कोई काम नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह. And I was like okay, और मैं उनसे थोड़ा बहुत मैं उनको जानती थी, and I said कि ठीक है हम ना एक बस बना लेते. तो मैंने एक ऐसी सरसरी सा ग्रुप बनाया, members like in Pakistan और वो सब. And within 4-5 months I realized कि this is very capable team और बाकी they are serious, और फिर मैंने उनको proper organize किया. So my very first tip is कि अगर आप कुछ initiate करना चाह रहे हो ना, तो start with your own, और reach out to your professional, कोई भी ऐसा दोस्त है जिसको you can trust, और कोई दोस्त है जिसके साथ classmate है जो serious है, उसको reach out करें. अगर आपको वैसे ऐसा कोई नहीं है तो just launch it, और उसके बाद आप इश्तिहार दे सकते हो या इस तरह से. अगर लोगों को आपका मिशन समझ में आता है, आपका विजन वो समझ पाते हैं, तो वो खुद आपके पास आएंगे, जैसे मेरे केस में हुआ. अदरवाइज आप अपने दोस्तों के साथ या उस तरह से कर सकते हो. अगर दोस्त भी नहीं है, सीनियर्स भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो आई वुड से कि आप अपनी नेटवर्किंग पे काम करो, आप लोगों से मिलना जुलना शुरू करो, इंटर्नशिप्स करो, वॉलंटियर करो, स्मूथली प्रोग्राम्स पे जाया करो, नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाया करो, फंड रेजिंग इवेंट्स पे जाया करो. बिकॉज बिफोर लॉन्चिंग माई वेंचर आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ 3 years in community development and public speaking. Like I was part of debating society, Ravinsky society, library society, and list goes on and on. I had volunteered with SOS Children's Village, the Citizens Foundation, so I had a lot of my social circle was very huge. Jab they got to know that I have launched it, so majority of them wanted to be part of it. And then मैंने एडवर्टीजमेंट की और बहुत सारे लोग रीच आउट उन्होंने किया, एंड देन आई मेड अ ग्रुप, और फिर मैंने उनको अपडेट्स वगैरह दी. और अभी मैंने आज ही सुबह मैंने उनमें से कुछ लोग निकाले हैं, बिकॉज दे वर नॉट सीरियस अबाउट इट, और उसमें से आई आइडेंटिफाइड 5 to 6 people and I added them to my main group, our main group देहकान के, who are really serious उसके बारे में. बिकॉज टीम के बगैर आपको ना फंडिंग मिलेगी, ना कोई अवार्ड मिलेगा, कुछ भी आप नहीं कर सकते हो. टीम इज एवरीथिंग. तो ये 2-3 हैं कि अगर आपके पास नहीं है सर्कल, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करें जिससे आप यू गेट टू इंटरेक्ट विद पीपल, और इस तरह से आपका वो बढ़ता जाएगा, और इस तरह लोग मिलते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा. तो these are like my few tips when it comes to team building and capacity building. बात लंबी हो जाएगी, but I will keep it very brief when we talk about Aspire Leaders के जो Aspire Institute के पाकिस्तान में university chapters हैं. So I reached out to my juniors that this is Aspire Institute and we want to establish a club here at Government College, and do you want to be part of it or not? And they were like, "Okay, हम तो बहुत serious हैं," and stuff like that. And we made a group and we met एक बार. And after delivering an orientation session about Aspire Institute to my fellows, to my juniors, I asked them to arrange such sessions on their own. I just शुरू में बस मैंने उनको बताया, और उसके बाद मैंने उनको छोड़ दिया, and they conducted like 4-5 sessions, और वो सब उन्होंने खुद किया. We had physical sessions, events वहाँ पे मैंने अपने, और उसमें भी I reached out to my friends जो different societies के part थे, और उनका रजिस्ट्रार में बहुत वो था, influence था, और इस तरह से 11th hour पे हमने अपने desks लगवाए गवर्नमेंट कॉलेज में करियर फेस्ट पे. तो इस तरह से होता है कि जब आपके नेटवर्क्स होते हैं, आपके लिंक्स होते हैं, तो आप उनको इस्तेमाल करते हो अपनी बेहतरी और अपनी उसके लिए
लाइक क्या करना चाहिए उसके, आप जो भी अच्छा काम कर रहे होते हो उसको एक्सपैंड करने के लिए। तो टीम तरह से आई थिंक बहुत बड़ा हो गया है, तो सो अगर इस तरह से कोई और भी क्वेश्चन हो, यू कैन आल्सो रीच आउट टू मी विया लिंक्डइन। जी अगला सवाल क्या है? Next question is from Abdul Wahab. I recently completed ALP cohort 3 and got a certificate. Now how I become a Aspire alumni for cohort 4 and cohort 5? Okay, so you don't need to be, part of cohort 4 and cohort 5. आपका cohort 3 हो गया है. Now, congratulations, you are an alum. आप इस पे काम करो, अपना SISF पे, अपने प्रोजेक्ट पे, अपने आइडियाज पे. इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट सोशल इम्पैक्ट एंड लीडरशिप, तो आप अपनी नीश आइडेंटिफाई करो. आप देखो कि आपने काम किस चीज पे करना है. आप अपने प्रोफेसर्स और अपने दोस्तों सबसे बात करो और उस पे काम करना शुरू कर दो. यू डोंट नीड टू बी पार्ट ऑफ अदर कोहोर्ट्स, बल्कि अभी आपका ये मिशन होना चाहिए कि हाउ टू विन सोशल इम्पैक्ट सीड फंड. आई गेस उनका नाम चेंज हो गया अभी, तो आपने वो SISF कैसे जीतना है उस पे काम करो, अपने आइडियाज को रिफाइन करो. Next question from Tanzilur Rahman. I have a question regarding the funds provided for community-based initiatives. Once someone receives funding to address a community issue, are they required to submit any documentation or evidence of the work done afterward, or is it simply based on trust that the individual has fulfilled their responsibilities and no follow-up or reporting is typically expected? ओके परफेक्ट, सो वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे पहले तो हम एक अलुमनाई बन गए, हम मतलब एस्पायर का हिस्सा है और वो सब. उसके बाद आप SISF पे अप्लाई करते हो और आप ये कह रहे हो कि हमें फंडिंग मिल गई है. उसके बाद फॉलोअप्स वगैरह किस तरह से होते हैं. सो वी हैव टू सबमिट. जो SISF होता है वो 3 मंथ्स का उसमें होता है, प्रोजेक्ट होता है, और इसमें आपको मिड जो प्रोजेक्ट होती है ना उसकी रिपोर्ट देनी होती है आफ्टर 1.5 months. और इस तरह से 2 फॉलोअप्स होते हैं और फिर फाइनल रिपोर्ट. और जब हम CA की बात करते हैं तो उसमें हमारा भी हर वेडनेसडे को अभी हुआ है जुलाई की रिपोर्ट. लाइक इट्स अ सॉर्ट ऑफ 3 minutes प्रेजेंटेशन, और इस तरह से यू हैव टू सबमिट द रिसीट्स, और आपको अपनी फोटोज वगैरह सबमिट करानी होती है कि आपकी प्रोग्रेस किस तरह से रही है और वो सब. तो इट्स नॉट लाइक सिर्फ ट्रस्ट और वो सब. देयर आर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स जिसको वी आर सपोज्ड टू बी अबाइड बाय देम. सो या. Next question from जी, Muhammad Rayan. I have already completed this program on cohort 3. Now further what I do? Okay, so Rihan, check out your emails. आप उस पर पूरी नजर रखो कि when do you receive the application link for social impact seed fund, because बहुत 7-8 दिन होते हैं. You have to apply within that time period. तो आप I highly recommend to apply for social impact seed fund. और उसके लिए again identify your niche, work on your ideas, refine them, collect your recommendation letter, refine your proposal, and just submit it. Good luck. Next question from Husna Shahzadi. Master's applicants are cannot eligible for this. No, if you're enrolled in a master's degree, you're not eligible for that. But yeah, if you're a recent graduate and you're aspiring to be a master's student, then you are eligible. But yes, अगर आप master's की degree में हो, तो you're not eligible. Next question from Mariam Khalid. What are the policies for those to join ALP who have more than required educational level? Like आप ये पूछना चाह रहे हो कि जो मास्टर्स जिनका एजुकेशनल लेवल से ज्यादा हो गया हुआ है, लाइक बैचलर से ऊपर. जैसे द सेम क्वेश्चन जो पहले आया है यही कि अगर आप मास्टर से भी ऊपर हो या PhD कर रहे हो या मास्टर्स आप कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो. सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेड वाले और बैचलर्स वाले, सॉरी जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं बैचलर्स के, वही एलिजिबल हैं इसके लिए. कोई पॉलिसी नहीं है ऐसे उन इंडिविजुअल्स के लिए who are not
aligned with the educational background, जो भी eligibility criteria है उसकी. Next question from Verda Ehsan. I did BS Statistics in 2022. Please guide me. What should I do now? Stats में bachelor's किया है उन्होंने. Hello. Hello, Laiba. Could you please repeat this question? Okay, Miss. A question from Verda Ehsan. I did BS Statistics in 2022. Please guide me. What should I do now? Okay, so it's been like 2 years since she has been graduated stats में bachelor's पे. Okay, so अभी तो she's not eligible for Aspire Leaders program since she's not recent graduate. 2 साल हो गए. अच्छा, what should she do? What should she do? आपको क्या करना चाहिए? जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके मुताबिक क्वेश्चन जवाब दूंगी, हालांकि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट एरिया. If you think you have enough educational background, transcript, CGPA grades, and enough record of extracurriculars and co-curriculars, so of course you should apply for masters, for fully funded scholarships. Otherwise, you can also pursue a master's degree yahin pe reh ke in Pakistan from institutions like LUMS and FAST and stats related. So I think UET is also a good option, but it totally depends upon your CGPA. आप scholarships कितना secure कर सकते हो. It totally depends upon आप आगे क्या करना चाह रहे हो. Like आपका interest किस तरह से किस तरफ align कर रहा है. तो ये वाले चंद फैक्टर्स हैं जो डिपेंड जिन पे करता है कि आप को मास्टर्स में क्या करना चाहिए. इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल कंडीशंस और इस तरह से. Okay, if anyone has a question, please raise your hand. Tila, unmute yourself. Now you can ask your question. Sadia Manavar, do you have any question? Sadia, now you can ask question. Unmute yourself.
अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आप बोलिए। अच्छा, वो मैंने एक क्वेश्चन पहले किया आइल्स और जीआरई के हवाले से, तो वो आपने मुझे बताया, तो मैं उसके बाद पूछ रहा था कि ये आइल्स और जीआरई के ये एएलपी वाले फिर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं या फिर आइल्स या जीआरई को रिप्लेस करता है ये एएलपी? अच्छा अच्छा, एएलपी आपको फंडिंग देता है। जो फी होती है ना वो टेस्ट देने की, जीआरई या आइल्स वगैरह की, आई गेस अभी 87,000 के करीब है आइल्स के लिए। तो वो आपको फंड्स देते हैं कि आप अच्छे से कंडक्ट कर लो। सो आपको उन्हें कन्विंस करना होता है कि यू आर एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट और आप बाहर अप्लाई करना चाहते हो, और उसके लिए इट्स मैंडेटरी टू टेक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो प्लीज ग्रांट मी फंड्स वगैरह। ये सीन होता है इसका। उसके लिए मुझे क्या उन्हें मेल करना है या मतलब प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का फिर? इफ यू आर एन एलएम तो आपको एसआईएसएफ के दौरान ही एकेडमिक ग्रांट्स की एप्लीकेशन आती है, तो आपने वो सबमिट करनी होती है। मुझे तो जो ये कोहार्ट 3 हमारी कंप्लीट हुई, तो कोई एक हफ्ता भी नहीं हुआ जो मुझे सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन इस तरह कोई मेल मुझे अभी तक नहीं आई मेरे ख्याल से। तो उमर, आप थोड़ा वेट कीजिए, या अपनी ईमेल वो वाला बॉक्स दोबारा रिफ्रेश करें, या थोड़ा वेट कर लें। आपको इसके तकरीबन 2-3 हफ्तों बाद आती है, लाइक एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। ओके, थैंक यू मैम। Sadia, if you have any question, you can unmute yourself. Okay, so I think there's no more question. On behalf of the Scholar Society, I'd like to extend our heartfelt gratitude to Ms. Fatima Bibi for sharing her valuable experiences and motivations with us today. We are deeply inspired by your journey and the insights you have provided. Thank you to all the attendees for joining us. We will look forward to welcoming you again to our future events. Until then, may you stay safe and inspired. Allah Hafiz. Thank you so much, Adil, Scholars Bridge Society, and everyone who participated. Thank you so much. Good luck. Khuda Hafiz.